So today we're going to start actually another important topic which is actually related to the operative dentistry. So let's start it. Bismillahirrahmanirrahim. Actually, basically the very important actually in operative dentistry is dental caries. In the whole dentistry, we study the most about that how actually dental caries cause, how basically it spreads, how to prevent dental caries, and what are the procedures that can be actually done. So basically. First of all, to understand the dental caries definition. Okay, multifactorial, they have said that multifactorial means that multiple factors are involved in its causing the dental caries. Now, basically, we understand multifactorial is sugary products. Sugary products. Then we have actually the patient had bad oral hygiene, matlab plaque accumulation, bacteria, even acidic drinks. Okay, now this is actually a transmissible infectious oral disease that was caused by a very complex interaction of the cryogenic oral flora. We have studied in the third year what is biofilm. Biofilm basically a complex interaction of the cryogenic oral flora on with the fermentable dietary carbohydrates. These bacteria, what they do actually, they ferment the carbohydrates and form a lactic acid on the tooth surface over the time, due to which actually demineralization happened. Okay, now basically we will study about some factors that actually favor the demineralization, or either they those that actually favor the remineralization. Okay, सो बेसिकली इट इज़ एसेंशियल कि आप समझिए इस बात को कि जो कैरियस लीजन होता है उसमें हमारे पास हमने सबसे पहले क्या करना होता है, अंडरलाइनिंग कंडीशन को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, अंडरलाइन कॉज क्या है बेसिकली। ठीक है, फिर हमने देखना होता है कि इम्बैलेंस देखना होता है प्रोटेक्टिव फैक्टर्स के दरमियान और पैथोलॉजिक फैक्टर्स के दरमियान जो फेवर करते हैं इन सब को। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि जो रिस्टोरेटिव ट्रीटमेंट होती है ना कैरीज की, कि फिलिंग के थ्रू आप ट्रीट कर ले डिजीज़ को, वो तो है, लेकिन अगर सिम्टोमेटिक होता है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि बेसिकली अंडरलाइनिंग कॉज क्या है सबसे पहले। ठीक है, अंडरलाइनिंग कॉज किसी भी डिजीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको टोटली प्रिवेंट करना चाहते हैं, यू शुड एक्चुअली एलिमिनेट दैट कॉज। Now, coming towards the ethology or cause of dental caries, we have five critical parameters. One is actually biofilm, then the other is actually tooth habitat and diet, saliva, and oral hygiene. There's a mnemonic which I have made for it actually, which is actually BDS2. BDS2, like you remember it very easily. ठीक है, तो B for biofilm, D for diet, S for actually we have a saliva, T for actually tooth habitat, and O for oral hygiene. Now here basically we have actually a Jordan diagram, which is a modified Kai's Jordan diagram, in which is an interaction of the cryogenic oral biofilm with fermentable carbohydrates on the tooth surface over the time. Okay, so basically this कि ऑल द पीपल डज नॉट हैव के उनके अगर बेसिकली टीथ है और बायोफ्लेम है, सो जब वो कार्बोहाइड्रेट्स इन करेंगे तो उनको कैरीज होगी ही होगी। ये हमें नहीं, बिकॉज हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे पास मॉडिफाइंग फैक्टर्स क्या है, मतलब रिस्क फैक्टर्स क्या है, और बेसिकली प्रिवेंटिव फैक्टर्स या प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या है। ठीक है, हमारे पास क्या है कि यहाँ पर प्राइमरी मॉडिफाइंग फैक्टर्स है। ठीक है, प्राइमरी मॉडिफाइंग है और सेकेंडरी मॉडिफाइंग फैक्टर्स है। मॉडिफाइंग फैक्टर्स बेसिकली वो फैक्टर्स होते हैं जो एक चीज़ को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट की टूथ एनाटमी अच्छी नहीं है, ठीक है ना, मतलब उसकी कोई डेवलपमेंटल इशू है, जो रूट स्ट्रक्चर है, तो फॉर एग्जांपल उसमें डेंटल कैरीज के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। कोई पेशेंट अगर हाइपोसेलिवेशन का पेशेंट है, चाहे डायबिटिक पेशेंट होता है हमारे पास, या कोई ऐसे ड्रग्स ले रहा है कि उसमें हाइपोसेलिवेशन हो रही है पेशेंट को, तो उसमें डेंटल कैरीज के बहुत चांसेस होते हैं। बायोफ्लेम अगर डेवलप्ड कर जाता है तो वो पीएच को लो कर जाता है, एसिडिक कर जाता है, तो डीमिनरलाइजेशन होना स्टार्ट कर जाती है। यूज़ ऑफ फ्लोराइड, पेशेंट क्या कर रहा है, पेशेंट कई ऐसी जगह पर नहीं रह रहा है जहाँ पर फ्लोराइड की कंसनट्रेशन बहुत कम है। ठीक है, या वो ऐसा टूथपेस्ट यूज़ करता है जिसमें फ्लोराइड नहीं होता। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होता है, डाइट स्पेसिफिक, पेशेंट कौन सी डाइट ले रहा है, कोई बहुत शुगरी डाइट तो नहीं ले रहा है, बहुत कार्बोहाइड्रेट्स तो वो इंजेस्ट नहीं कर रहा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
पेशेंट का क्या होता है कि अच्छा डाइटरी स्पेसिफिक्स में ये भी होता है कि जैसे बच्चों में माएँ क्या करती हैं, मदर्स क्या करती है, वो क्या करती है कि वो बेसिकली दूध जब देती है ना, फीडर मतलब बोतल जब देती है ना, तो वो पेशेंट के मुंह मतलब सॉरी बेबी के मुंह में रख देती है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वो बच्चे के मुंह में होता है, जिसकी वजह से देयर इज़ अ वेरी कि जो टूथ होता है वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए एक्सपोज होता है टू द शुगरी, क्योंकि बेसिकली मिल्क में भी एट द एंड ऑफ द डे वो बेसिकली शुगर डालते हैं ना मिक्स करके। ठीक है, ओरल हाइजीन अगर अच्छी नहीं है पेशेंट की, ठीक है, डेंटल कैरीज हो सकते हैं, इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होता है कुछ लोगों के। फॉर एग्जांपल ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, जैसे कैंसर के पेशेंट्स हो जाती है, कुछ भी हो जाता है जिनका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो उसकी उनमें भी डेंटल कैरीज होते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स ऐसे जेनेटिकली होते हैं जो बेसिकली होता है। सेकेंडरी मॉडिफाइंग फैक्टर्स सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, पेशेंट का स्टेटस क्या है, एजुकेशन, वो कितना अवेयर है अबाउट डेंटल प्रिवेंशन के बारे में, कि हम किस तरह ब्रशिंग टेक्निक, लाइफ स्टाइल उसकी कैसी है। वही बात है कि वो अगर शुगरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, उसकी अमाउंट कितनी है, इन किस तरह का इन्वायरमेंट है, उसकी एज की कौन सी, कुछ एथनिक ग्रुप्स में कुछ डिजीज़ बहुत कॉमन होती है, उसका ऑक्यूपेशन कैसा है। फिर हम क्या पढ़ते हैं, होस्ट, टाइम, कार्बोहाइड्रेट्स एंड बायोफ्लिम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होस्ट, टाइम, कार्बोहाइड्रेट्स एंड दिस बायोफ्लिम। अच्छा, ना बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि डीमिनरलाइजेशन और रीमिनरलाइजेशन का एक साइकिल होता है। अब हमारे पास क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है बायोफ्लेम में, वो कार्बोहाइड्रेट्स को जो रिफाइन होते हैं उनको मेटाबोलाइज करके बेसिकली एसिड को, ऑर्गेनिक एसिड एज अ बायो प्रोडक्ट यूज़ करती है, जिसकी वजह से जब एसिड प्रोड्यूस होता है तो हमारे पास क्या होता है, जो पीएच होता है वो बेसिकली डिक्रीज़ कर जाता है बायोफ्लिम की वजह से। जो नॉर्मल पीएच होता है एनिमल का वो 5.5 होता है और डेंटिन का 6.2 होता है। फिर हमारे पास उसके बाद डीमिनरलाइजेशन स्टार्ट कर जाती है, लो पीएच होगा तो कैल्शियम और फॉस्फेट क्या कर जाते हैं, बेसिकली ये टूथ से ड्राइव कर जाते हैं टू द बायोफ्लेम। ठीक है, वो टूथ से बायोफ्लेम में वो सब कुछ आएगा टू अटेम्प्ट कि वो एक इक्विलिब्रियम को रीच कर सके। इस लॉस की वजह से डीमिनरलाइजेशन कॉज होती है। रीमिनरलाइजेशन ऐसी होती है कि जब पीएच जो है वो नॉर्मल हो जाए और रिटर्न टू द न्यूट्रली, वो न्यूट्रली हो जाए, जिसकी वजह से कैल्शियम और फॉस्फेट सुपर सेचुरेटेड हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द टूथ। जब वो टूथ के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाता है तो बेसिकली फिर जो है दे बैक टू पार्शली या डीमिनरलाइज एनिमल में वो दोबारा आते हैं, ये आइंस, और बेसिकली डीमिनरलाइजेशन कॉज करते हैं। ये जो साइकिल होता है ये सेवरल टाइम्स दिन में होता रहता है। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे नंबर एंड टाइप ऑफ माइक्रोफ्लोरा, बायोफ्लेम, पेशेंट की डाइट, again oral hygiene, genetics, dental anatomy, fluoride and other chemotherapeutic agents, salivary flow and buffering action of the saliva, inherent resistance of the tooth structure and composition that will actually differ from person to person, tooth to tooth and side to side. Now we have actually प्रोग्रेशन ऑफ अ डिजीज़। सो हमारे पास क्या होता है कि कुछ ऐसे, सबसे पहले कैविटी है, इनेमल सरफेस एंड देन हाउ इट। जब पेशेंट को रिपीटेड डीमिनरलाइजेशन होती है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ प्रीडोमिनेटली कि पैथोलॉजिक इन्वायरमेंट होता है, तो उसमें एक लोकलाइज्ड डिसोल्यूशन एंड डिस्ट्रक्शन होती है। क्लास जो डेंटल टिश्यूज़ है ना कैल्सिफाइड, वो लोकली वो कर जाते हैं, डिज़ोल्व कर जाते हैं, उसकी वजह से एक कैविटी बन जाती है। वही बात है, फिर जब सवेयर होती है, बहुत ज़्यादा डीमिनरलाइजेशन होती है, तो बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ कैविटेशन वो इनेमल पे अपेयर होती है, और अगर सब्सिक्वेंट डीमिनरलाइजेशन है, मतलब रुक नहीं रहे, तो अनऑर्गेनिक फेस की वजह से क्या हो जाता है, हमारे पास डीमिनरलाइजेशन, अनऑर्गेनिक फेज हो जाता है, डीमिनरलाइजेशन या डिग्रेडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक फेस में हमारे पास डेंटिन कैविटेशन होती है। सबसे पहले इनेमल में कैविटी बनती है, फिर डेंटिन में प्रोग्रेस करती है।